Hello, my grade 12 students. How are you all? Hope you are doing good. Hope you are studying well. Hope the lockdown isn't making you a lazy kid. See, if it is, don't be. Because no matter the situation, no matter what it happens, keep on studying. Do not stop. Education is something so precious. It's going to remain with you forever. The knowledge you are gaining now is going to be a part of your life forever. No one can snatch it from you. Okay, anyways, forget about it all. Now let's begin our chapter number 2, Lost Spring. This is from our book of Flamingo. Now, in the Lost Spring, let's first look about the author Anis Jung. Okay, now Anis Jung was born in Rourkela, okay, in 1964, and she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She also studied in Hyderabad and later went to USA, that's United States of America. Her parents are both writers, so you see she can also it's obvious that she can be a very good writer definitely once the parents are also writers. She was also an editor and columnist for major newspapers in India and outside India as well. Now our story, The Lost Spring. Okay, this is from her collection of stories of stolen childhood. That is to say, she has a book, Stories of Stolen Childhood. Amongst it is a story, Lost Spring. Okay, and in this story she tells us how poverty, okay, and some traditions are destroying the life and future of children. We are going to see why she says so in our story ahead. So there's some expressions we're going to come across this in the story. Let's begin. Sometimes I find a rupee in the garbage. Now look at this statement. Sometimes I find a rupee, that's just 1 rupees, in the garbage that is rubbish dustbin. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. So the story begins with a question. Okay, the author asks Sahib, our first character here, Sahib. Okay, so she asks him, why do you do this? As per what he's doing, why does he do it? And what does he do? Every morning he's scrounging, that is search roughly. When you're finding something, when you're searching for something. Okay, and he searches for what? For gold in the garbage dumps. Dumps, that is heaps in the neighborhood. And Sahib left his home long ago. Okay, greenfields of Dhaka. Dhaka, that's in Bangladesh. So, you see, his home was far somewhere in Dhaka, and many storms swept away their fields, that is their farmlands and their homes. That is the story his mother tells him. And now they are staying in this big city where he is looking for gold. I have nothing else to do, he mutters, looking away. So you see, जब हम बिल्कुल दांत दबाकर बिल्कुल क्लियरली नहीं बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मटर. Okay, so he muttered, I have nothing else to do. I have nothing, और कुछ है ही नहीं करने के लिए. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब देखें, he said I have nothing else to do. She says school जाओ. And बोलते ही she sudden उसको एकदम realize होता है, उन्हें समझ में आता है कि कितनी खोखरी होगी ये एडवाइस. ये जो सलाह दी थी ना, एडवाइस दैट इज़ सलाह कि स्कूल जाओ, इट वॉज वेरी होलो. होलो का मतलब होता है खोखरा, जो खाली होता है अंदर से. ठीक है, सो वो एडवाइस, वो सलाह बिल्कुल खाली होगी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. देखिए, सिंपल से जवाब देते हैं साहब, मेरे नेबरहुड में, पड़ोस में, मोहल्ले में जहाँ पर वो रहते हैं, कोई स्कूल नहीं है. जब एक बन जाएगा, आई विल गो. फाइन. वो क्या कहते हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. सो नाउ शी सेज कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो आओगे, मजाक में. And he's like smiling broadly. खुशी से कहते हैं जी. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready?
कुछ दिन बाद ही मैंने देखा साहिब मेरी तरफ आ रहे थे दौड़ते हुए, पूछते हैं स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound at every corner of this bleak world. अब देखें कहा था, isn't it? इन्होंने कहा था ना कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तुम आओगे। अब इन्हें शर्मिंदगी होती है, ओके, एम्बैरसमेंट, कि ऐसा वादा किया था जो पूरा करना ही नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी सोच थी कि ऐसे तो वादे इस पूरी दुनिया के, इस मतलबी पूरी दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, कह देते हैं पर पूरा ही नहीं करते कभी। After months of knowing him, I asked him his name. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, that is Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अब देखें बहुत टाइम हो गया था, महीनों से जानती थी, क्योंकि उनके घर के बाहर ये साहिब आता था एंड सारा जितना भी कूड़ा होता था इकट्ठा हुआ उसमें से बहुत ही रफली, बहुत ध्यान से सोना ढूंढते थे, गोल्ड। सो इतने महीने बाद फाइनली पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड वो बताता है साहिब आलम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का लॉर्ड, बॉस, ओनर, ओके। He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब साहिब आलम जो था इन अ ग्रुप, ठीक है, सारे में फिरते थे। इनका यही काम था कि जहाँ भी कहीं कूड़ा होता है, डस्टबिन होता है, वहाँ पर ये जाकर बहुत ध्यान से उसमें से सोना ढूंढते थे। एंड जो इसके दोस्त थे, एन आर्मी, ओके, दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, बेयर फुट, नंगे पाँव, दैट इज़ फुट, दैट इज़ पैर, ओके, एंड देन बेयर, नंगे, सो नंगे पाँव फिरते थे। एंड सुबह की चिड़ियों की तरह होते थे कि सुबह में तो दिखते थे और दोपहर तक गायब हो जाते थे। खैर उन्हें देखते देखते हर एक को अब ये पहचानने लगी थी। कौन? हमारी ऑथर। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. अब ये पूछती हैं उनमें से एक से, तूने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? वो जवाब देता है बहुत ही सिंपल तरीके से, मेरी अम्मी ने ऊपर अलमारी पे से ऊपर से उतार के नहीं दी, ठीक है, मतलब जैसे अलमारी के ऊपर रखी है तो उतार कर नहीं दी। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब देखें, जो एक दूसरा था वो कहता है कि अगर वो, उसकी जो मदर है, अगर वो उतार के भी दे दे चप्पल तो ये उनको निकाल फेंक देगा, ठीक है। एंड जो बोल रहा था वो, उसने जूते पहन रखे थे जो दोनों अलग अलग थे, ठीक है, मैचिंग नहीं थी, एक जोड़ा नहीं था जूते का। एंड जब उसके जूतों पे मैंने बात की तो वो अपने पैर आगे पीछे करके चुप हो जाता है। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। अब एक तीसरा था जो कहता है मुझे जूते चाहिए, एंड वो ऐसा था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी उसके पास एक जोड़ा ही नहीं था, ना चप्पल का ना जूतों का। Traveling across the country, I have seen children walk in barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब देखें, इनका कहना है कि जब हम अपनी कंट्री में, अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमने देखा है अक्सर कि बच्चे जो हैं और बड़े भी वो नंगे पाँव चलते हैं, ठीक है, शहरों में भी और जो गांव की सड़कें हैं वहाँ पर भी। हालांकि पैसों की कमी नहीं होती, लैक मीन्स कमी, ठीक है, पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन एक ट्रेडिशन है, मतलब कि उनका एक तौर तरीका है कि नंगे पाँव रहना है, कुछ लोगों का ये कहना है। लेकिन शायद ये सिर्फ एक बहाना है गुर्बत छुपाने का, दैट इज़ गरीबी छुपाने का। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. Okay. Now, एक story है जो ये हमें बताती है कि कोई था उदीपी से जिन्होंने इनको एक कहानी बताई थी, ठीक है। एंड उस कहानी में ये था कि एक बच्चा था जो डेली स्कूल जाता था,
एंड स्कूल से गुजरते हुए रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था एंड उस मंदिर के जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, वो उसके फादर थे। खैर वो वहाँ पर रुक कर वहाँ पर प्रार्थना करता था कि उसे एक जूते का सेट चाहिए, जूते का पेयर चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ पेयर ऑफ शूज़। कोई बात नहीं। 30 साल बाद क्या होता है, 30 साल बाद जो हमारी ऑथर है वो वहाँ पर जाती हैं, ठीक है, विज़िट पे जाती हैं उस शहर में एंड उस टेम्पल पर। लेकिन वहाँ पर तो अब बिल्कुल एक सन्नाटा था। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खालीपन, सन्नाटा। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब जो पीछे का हिस्सा था उस मंदिर का, जहाँ पर एक नया प्रीस्ट रहता था, नया पुजारी या पंडित, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी। A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remained shoeless. अब देखिए इस पैराग्राफ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमें पता है कि अक्सर अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जो मंदिर में पुजारी होते हैं या पंडित होते हैं वो अक्सर नंगे पाँव रहते हैं, ठीक है, वो एक मान्यता होती है, उसे मानते हैं इस तरह से कि नंगे पाँव रहना चाहिए क्योंकि मंदिर का फर्श साफ़ रहता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये जब वहाँ पर पहुँचती हैं, वहाँ पर जो एक पुजारी बैठे थे उनके पास एक बच्चा आता है स्कूल से जिसने यूनिफॉर्म पहन रखे थे, जूते मोज़े पहन रखे थे, ठीक है, एंड अपना स्कूल बैग वहीं पर एक फोल्डिंग बिस्तर पे डालता है। अब इस बच्चे को देखकर इनको उस पहले वाले की याद आती है जिसने प्रार्थना की थी कि हे भगवान मुझे एक जूतों का चाहिए, ओके, एंड जब मुझे वो मिल जाए तो मैं उन्हें कभी खोने नहीं दूँगा, मैं उनका ख्याल रखूँगा। सो इनकी सोच अब ये है कि ये अब ज़माना है कि जो प्रीस्ट होते हैं उनके बच्चे होते हैं वो तो सब जूते मोज़े पहनते हैं, लेकिन जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो बेचारे नंगे पाँव रहते हैं, उनके पास जूते तक नहीं होते। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, ठीक है, जस्ट जो हमारी जान पहचान होती है, बहुत ज़्यादा नहीं जानते किसी को, मतलब बातचीत होती रहती है। सो बेयरफुट रैग पिकर्स, यही जो नंगे पाँव थे, जो ग्रुप था लड़कों का जो कूड़े में से सोना निकालते थे, ओके। सो इनके साथ बातें वगैरह करते करते मुझे एक इलाके की ख़बर मिली, पहचान मिली, एक सीमापुरी नाम की जगह जो कि दिल्ली के पेरिफेरी पे थी। अब वहाँ पर जो रहते थे वो लोग थे जो 1971 में बांग्लादेश से आ चुके थे। मतलब ये जो आना था ये ऐसे ही नहीं कि आ गए थे रहने, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में क्योंकि उनके घर तूफ़ान में बह गए थे, उनके पास खाने पीने का नहीं रह गया था, ठीक है, सो उनके पास जगह नहीं होती है रहने की, तो वो यहाँ पर आके बस गए और वो इलाका था सीमापुरी। सीमापुरी was then a wilderness, it still is, but it's no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अब देखें, सीमापुरी जो है बहुत अजीबोगरीब जगह थी। पहले थोड़ी सन्नाटा में रहती थी, सुनसान था, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अब खाली नहीं थी। वहाँ पर अभी भी जो घर थे वो मड के थे, कच्ची मिट्टी के थे, उनकी जो छतें थी, रूफ्स, वो टिन और टार्पलिन की होती थी। वहाँ पर सीवेज, ठीक है, गंदे पानी का, नाले का कोई रास्ता नहीं था, कोई नाले नहीं बने हुए थे, एंड वहाँ पर रहते थे 10,000 कूड़े उठाने वाले। They lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity.